देखिए सामने भैया सब आगे आओ, आगे थोड़ा आगे निकल गया, आप थोड़ा आगे आओ, आप और आगे आओ, आप बस देखिए सामने, देखिए सामने, इधर देखना भैया, इधर साइड देखिए मैम सामने, देखिए मैम सामने, भैया देखिए ऐसे रहना अभी, ठीक है। आइए कौन और Make it now. ऐसे रहना अभी, ठीक है। देखिए देखिए सामने भैया, भैया इधर ऐसे रहना अभी, बाहर आ जाओ, वो आगे, वो आगे बाहर आ जाओ। ये सामने ऐसे रहना अभी, ठीक है। भैया भैया एक बार देखिए ऐसे रहना अभी, आप थोड़ा आगे आओ भैया, देखिए ऐसे रहना अभी, बाय ऐसे रहना अभी, देखिए सामने भैया सब, मैम सामने, मैम इधर देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। Right now, I don't have anything to offer to my children, but two of the students, those who have achieved a great height, I would just like to call them on the stage with me. Uh, Manav Vashne, Dr. Manav Vashne, please come on the stage. And one more artist. I love his drawing and painting so very much. Read my lips, who is he? Yeah, Sanchit Singhal. Come on the stage. Sanchit. Sanchit, please. Oh my God. Clapping for Sanchit. Shubham karoti kalyanam. आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल।
Honorable Group Captain Mr. Rajiv Vashne ji. Thank you very much, Ashish, for inviting such a great and inspirational personality like Mr. Rajiv Vashne ji. एक बार जोरदार तालियां आपके लिए. Thank you very much, sir, for sparing time for youths of RBM. My dear friends, because now you become greater than my height, so you become my friends. My dear young friends, I am really overwhelmed to see you, such a gracious gathering of youths of RBM. I am thankful to all of you. In such a short notice, you accepted the invitation of the alumni of RBM committee, and you are here. Some of you have to leave for your jobs and all. सबको जाना ही होगा कहीं ना कहीं, बट उसके बावजूद भी आज के दिन आप रुके हैं, तो सैल्यूट एंड थैंक यू, एंड कीप दिस स्पिरिट अलाइव. I am really overwhelmed and will talk only on 3 points: A, B and C. My dear students, in our life, in every field, we have to work on A, B and C. ABCs are the basics of everything, because we cannot change the basic principles of anything. But as the time passes, we can moderate them, we can just explore in that particular field, but basics are always same. कभी भी basic principles बदलते ही नहीं हैं. So today I will talk about 3 basic principles, A, B and C. In 2009, थोड़ी सी बात हो जाए RBM की बहुत जल्दी से, quickly. In 2009, when I joined RBM, it was only up to standard 8, you know very well. And when I took the command, we got affiliation from CBSE till class 10. And 9th class में only 13 students were there. तो उनमें से कुछ बच्चे अभी मेरे साथ आए हुए हैं. Thank you so very much for keeping faith in me, because I called all my students personally, because we got affiliation letter in the month of July. जुलाई में मैंने आप लोगों को कॉल किया था और उसके बाद आपने एडमिशन दोबारा लिया था. एक बार आप टीसी ले चुके थे. तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई. एंड आफ्टर वर्किंग 5 fabulous years with you, अचानक एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया. What was that drastic change? स्कूल को एफिलिएशन कराना था till class 12th. It was not an easy task for me, because स्कूल जो बेसिक्स थे वो पूरा नहीं कर पा रहा था. जो बेसिक नीड्स होनी चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए एक +2 के एफिलिएशन के लिए, वो स्कूल के पास नहीं थी. Even then, by God grace and with help of you student, आपका जो फेथ, जो विश्वास मुझ पर था, उसके बाद I got affiliation till class 12 in the year of 2016. जोर से बोलिए. 2016. And this letter I brought in person on 30th September. जिसका किसी को भरोसा नहीं था,
बराबर लोग मना कर रहे थे कि ये स्कूल को किसी भी हालत में एफिलिएशन नहीं मिल सकेगा, लेकिन 30 सितंबर was the last date of getting affiliation till class 12th, लेकिन by God grace हमें वो मिल गई। तालियां बजनी चाहिए अपनी इस मेहनत के लिए। एंड फिर एक और बड़ा चेंज आया, एक साल नहीं हो पाया और एक ऐसा चेंज आया जो आप सभी जानते हैं। सडनली मैनेजमेंट टर्मिनेटेड मी। यू नो, मैनेजमेंट ने विदाउट एनी प्रायर नोटिस दे टर्मिनेटेड मी। उन्होंने टर्मिनेट कर दिया एंड आई वॉज ऑन रोड। माई प्रिंसिपल नंबर ए। अब यहाँ से आपकी सीखने की बात शुरू होती है। तो जब आई वॉज ऑन रोड, दे टर्मिनेटेड मी ऑन 1 सितंबर। उन्होंने पूरा एक साल नहीं होने दिया, 30 सितंबर नहीं आने दिया, 1 सितंबर को टर्मिनेट किया। एंड 5 अक्टूबर को मेरे बेटे की मैरिज थी। He arrived from Germany. My daughter also arrived from Canada. And I was helpless. क्योंकि मैं रोड के ऊपर आ चुकी थी and I lost my mental balance at that point of time. उस टाइम भी मेरे बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे घर पर आए और कंटिन्यूअसली उन्होंने स्ट्रगल किया। दे वेंट कमिश्नरी और डीएम तक के पास आप लोग गए थे। कितने बच्चे हैं उसमें से? हाथ नहीं उठा रहे, शर्म आ रही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे थे। आई हैव योर फोटोग्राफ्स। तो आप लोगों ने वहां पर बहुत सारा काम किया, मदद की। अब सीखने वाला पॉइंट क्या है? दो चीज हो सकती थी। सिचुएशन केम, वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। वो सिचुएशन आई और ये सबकी जिंदगी में आती है। बच्चों, आपकी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जहां पर कि आप टूट जाते हैं, आपको रास्ता नहीं दिखाई देता है। उस वक्त दो चीजें थी, या तो कायर की तरह से मैं घर बैठ सकती थी या फिर मुझे कुछ करना था। मैनेजमेंट ने मुझसे बोला कि दिस इज योर टर्मिनेशन ऑर्डर। एंड बहन जी, आपने 8 साल बहुत अच्छा काम किया। बहन जी, आपने 8 साल बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब हम आपको रख नहीं सकते। आप जैसा चाहे वैसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लीजिए एंड आई वुड साइन। मैंने कहा नो थैंक यू सो वेरी मच सर, आई वुड नॉट टेक योर एक्सपीरियंस लेटर। सारे बच्चों को पता है। आई वुड गेट जॉब once again as a principal with your termination order only. And I did it. I did it. I did it. मैंने ऐसा करके दिखाया। And wherever I go, I never submit my application. I first submit that termination order that is really fake. There is no ground जिसकी वजह से वो मुझे हटा सकते थे। बट आई एम स्टिल प्रिंसिपल एंड बाय गॉड ग्रेस एंड विद योर सपोर्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन अ प्रीमियर मोस्ट स्कूल ऑफ अलीगढ़ that is fully AC and with so many facilities which some normal schools do not have. तो वो प्रभु की कृपा। एंड क्यों मुझे मिला? बिकॉज आई वॉज एसोसिएटेड विद अ पर्पज। जो मेरा रिजेक्शन हुआ वहां पर मैंने कुछ पर्पज ढूंढा, पर्पज के साथ मैं एसोसिएट हो गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर ट्रबल कम्स इन योर वे, कुछ ना कुछ पर्पज देख लीजिएगा, भगवान ने कुछ अच्छा किया है। एंड ऑलवेज रेडी फॉर सम बिगर चैलेंजेस इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी परेशानियां आएंगी, उतना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ऐसा रूल नंबर 1 हमेशा याद रखो, कभी रोना मत, कभी भी रोना मत। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आए उतना ज्यादा हंसना। ओके? क्यों? बिकॉज माई रूल नंबर 2 इज बिलीव अपॉन योर सेल्फ। दो चीजें होती हैं बिलीफ सिस्टम में भी, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम एंड
निगेटिव बिलीफ सिस्टम। निगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से एक हाथी का बच्चा पैर में महावत जब रस्सी बांध देता है तो वो बंधा रहता है, और बड़ा होने के बाद, यंग होने के बावजूद भी वो समझता है कि भैया ये रस्सी मेरे को रोके हुए है, और वो कभी भी उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करता। दैट इज नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। सो डोंट ब्रिंग इन योरसेल्फ दैट नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। कभी भी अपने ऊपर इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बच्चों हावी मत होने देना, कभी भी मत हावी होने देना। एंड पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम कैसे लेकर आए? एक छोटी सी स्टोरी है। रोजर बैनिस्टर एक एथलीट है जिसको बोल दिया गया था सारे साइकोलॉजिस्ट ने, सारे डॉक्टर्स ने, कि भाई 4 माइल्स इन अ मिनट एक बैरियर है, कि 1 मिनट में 4 मील से ज्यादा कोई कभी भी कोशिश ना करे। यदि इससे ज्यादा दौड़ने की किसी ने कोशिश करी तो उसके लंग्स पंप हो जाएंगे और बर्स्ट हो जाएंगे और वो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन रोजर बैनिस्टर ने किसी की नहीं सुनी। वो क्या हो गया? बहरा हो गया। उसने कहा मुझे नहीं सुनना आपकी बातें, मुझे क्या करना है? आई विल रीच अप टू दैट। मैं ये जो मेरा 4 माइल्स का जो 1 मिनट 4 माइल्स का जो बैरियर है, उसको जो स्टीरियोटाइपिंग एक बना रखी है उसको मैं तोड़ूंगा और निश्चित तौर पर मैं उसे अचीव करूंगा। इन 1952 he ran and achieved and reached crossed 4 miles barrier in 1 minute। जोरदार तालियां रोजर बैनिस्टर के लिए, because we are taking inspiration from him. So this is the magic of belief system. So always strengthen your belief system। बिल्कुल मत सोचिए कि अरे भाई मेरे को, मैं आरबीएम में पढ़ता था या पढ़ती थी, मेरे कम मार्क्स आए थे किसी वजह से। No one is going to see your marks. Past is past. What lesson you are taking in your future is everything. So focus on your future only. पास्ट जो निकल गया है उससे केवल अच्छी टीचिंग्स आपको लेनी है, अच्छी लर्निंग्स लेनी है, उसके लिए रोना नहीं है, बल्कि उनको इम्प्रूव करके आज का प्रेजेंट आपको बनाना है, अपना बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव करना है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, सी इज व्हाट? सी मीन्स बच्चों क्या हो सकता है? कंसिस्टेंसी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है बताइए? कैरेक्टर हो सकता है। शाबाश। कंसिस्टेंसी हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, करेज हो सकता है, क्लैरिटी ऑफ विजन हो सकता है। वेरी गुड। और क्या हो सकता है गर्ल्स? कर्टसी हो सकती है। ओके। और सी से क्या क्या हो सकता है? अच्छी चीजें जो आप लास्ट मेरा सी कंप्लीट करेंगे। लास्ट C is come out from your comfort zone। जोरदार तालियां। come out from your comfort zone। सोना छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। come out from your comfort zone and work towards your goal which you fix for yourself with single-minded devotion। Only single-minded devotion, devotion and devotion, nothing else। And कोई भी दुनिया की ताकत, जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, जो कुछ भी दुनिया को दिखाना चाहते हो, जो कुछ भी अपने पेरेंट्स का कर्ज उतारना चाहते हो, और जो कुछ भी अपने देश के लिए करना चाहते हो, जैसे सर ने कहा, सिर्फ कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। सब कुछ आपके आगे आगे पीछे रहेगा, और जो सक्सेस है आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। सक्सेस विल ऑटोमेटिकली chase you and chase you। And
I am really thankful to all the organizers and my dear students, and I hope in future also we would organize bigger than this alumni meet. So thank you very much for inviting me. Thank you.